السلام علیکم، میں ہوں مدیحہ مسعود۔ ناظرین، آج ہمارا سال 2017 کا پہلا پروگرام ہے۔ پروگرام میری دنیا کے ناظرین کو سال نو کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ نیا سال ہم سب کے لیے خوشیوں کا پیغمبر ثابت ہوگا۔ اسی امید کے ساتھ ایک نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ دل کی کو دل والے ڈاکٹرز نہ ملے، قصور سے آئی غریب خاتون مختلف اسپتالوں کے چکر لگاتے لگاتے خادم اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے شہر میں جان کی بازی ہار گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے رپورٹ طلب کر لی۔ شیخوپورہ کے قریب کار اور وین میں ہولناک تصادم، مسافر وین کا سلنڈر پھٹ گیا، 4 افراد جاں بحق، 20 سے زائد زخمی۔ گجرات اور کنکوٹ میں بھی ٹریفک حادثات نے 10 افراد کی جان لے لی۔ شراب گھر اجاڑنے لگی، ٹوبا ٹیکسنگ کے بعد گجرانوالہ میں بھی زہریلی شراب پینے سے 4 افراد ہلاک، 2 کی حالت تشویشناک، سول اسپتال میں زیر علاج۔ کوئٹہ میں سیکیورٹی اہلکار دہشت گردوں کے نشانے پر، مغربی بائی پاس پر ایف سی کے قافلے کے قریب دھماکہ، اہلکاروں سمیت 6 افراد زخمی۔ پشاور میں لیڈی ریڈنگ اسپتال کے مریض رل گئے، لواحقین کو پارکنگ کا شدید مسئلہ درپیش، اسپتال پارکنگ دینے کا پابند نہیں، وزیر صحت کا بیان۔ سفارشی بھرتیاں، ذاتی پسند ناپسند نے لاڑکانہ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کو کرپشن کا گڑھ بنا دیا، اربوں روپے خرچ ہونے کے باوجود ادارے کی حالت جوں کی توں، تختیاں لگ گئیں، کام کہیں نہ ہوا۔ ماہرین حیوانات کی ٹیم نے جہلم کے گاؤں کی پہاڑیوں سے 35 لاکھ سال پرانا 6 فٹ لمبا ہاتھی کا دانت دریافت کر لیا۔ جنوبی پنجاب کا تاریخی ورثہ شجاباد کا جہازی محل اپنی حالت پر نوحکنا، 280 سال پرانا محل چوروں کی آماج کا بن گیا، قیمتی دروازے کھڑکیاں چوری ہونے لگے۔ اور ملتان کنٹونمنٹ گارڈن میں گل داؤدی کی سالانہ نمائش، خوش رنگ اور دل فریب خوشبو سے معطر پھولوں کو دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد امڑ آئی۔ پروگرام کے آغاز میں بات کرتے ہیں پنجاب کے سرکاری اسپتالوں کی حالت زار کی۔ صحت میں بہتری کے بلند و باغ دعوے تو کیے جاتے ہیں، لیکن زمینی حقائق بالکل اس کے برعکس ہے۔ قصور کی غریب خاتون زہرا بی بی ایک اسپتال سے دوسرے اور پھر تیسرے اور آخرکار مختلف اسپتالوں میں چکر لگاتے لگاتے خادم اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے شہر میں دم توڑ گئی۔ وزیر اعلیٰ نے مریضہ کی ہلاکت کا نوٹس بھی لے لیا ہے اور رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ وزیر صحت نے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا اندیہ بھی دے دیا ہے۔ یہاں بیڈ نہیں ادھر جاؤ، کسی نے یہاں اور کسی نے بھیجا وہاں، زندگی کی طلب میں سسکتی مریضہ مسیحاؤں کی بے حسی کے باعث موت سے جا ملی۔ دل کی تکلیف میں مبتلا قصور کی زہرا بی بی کو PIC لاہور لایا گیا، جنہوں نے سروسز ہسپتال بھجوا دیا۔ سروسز ہسپتال والوں نے زہرا بی بی کو جناح ہسپتال ریفر کر دیا۔ زہرا بی بی کو داخل تو کر لیا گیا، لیکن بیڈ یہاں بھی نصیب نہ ہوا۔ زہرا بی بی کے ہمراہ آئی بیٹی نے بتایا کہ صبح سے بستر نہیں ملا۔
बेड फैला पता उसे मरीज नु पा लिया एक होए के बाद उन्होंने बैठे अमले ने मरीजा को फर्श पर ही लिटाकर ड्रिप लगा दी। शदीद मौसम में 60 साला जोहरा फर्श पर ही दम तोड़ गई। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं कि तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी, जिम्मेदारों के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मरीजा की हलाकत का नोटिस ले लिया और रिपोर्ट भी तलब कर ली। और बिस्तरों की कमी की सूरत हाल लाहौर ही नहीं बल्कि फैसलाबाद में भी देखी गई। फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल में बेड्स की कमी है। एक बेड पर 2 से 3 मरीजों का इलाज किया जाने लगा है। बेड्स की कमी के बाइस मरीज मुश्किलात का शिकार हो गए हैं और बेड्स की कमी से हुक्काम को भी आगाह किया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये मौक़िफ़ है इंतजामिया का। आप कुछ मनाज़िर भी देख सकते हैं फैसलाबाद एलाइड अस्पताल के, जहां पर आपको एक बिस्तर पर एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 मरीज दिखाई देंगे और बेड्स की शदीद किल्लत है और मरीजों को इसी तरह से इलाज मुआलजा फराहम किया जा रहा है। एक एक बिस्तर पर 2 से 3 मरीज यहाँ पर एडमिट किए जाते हैं। इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि ये मसाइल से आगाह किया गया है, लेकिन ताहाल कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। बेड्स की कमी जो है हर सरकारी अस्पताल में देखी जा रही है। इससे पहले लाहौर की सूरत हाल आपने देखी, अब फैसलाबाद एलाइड अस्पताल की सूरत हाल आप देख रहे हैं, जहां पर बेड्स की शदीद कमी देखी जा रही है और एक एक बिस्तर पर 2-2, 3-3 मरीजों को लेटाकर उनका इलाज किया जा रहा है। जबकि इंतजामिया का जब मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई तो उनका कहना यही है कि आगे भी ये दरख्वास्त की गई है कि अस्पताल में बेड्स की कमी है और इस कमी को फिलफौर दूर किया जाए, लेकिन किसी तौर भी सुनवाई नहीं हो रही है। गुजरांवाला से अभी अहम खबर से आपको अपडेट करते हैं। सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की गफलत का एक और केस सामने आ गया। तिब्बी इमदाद न मिलने पर शहरी इमरजेंसी वार्ड के बाहर ही दम तोड़ गया। वरसा ने इल्जाम आयद किया है कि मशीनरी भी कम है और मरीज का डायलिसिस भी नहीं हो पाया है, इसीलिए वो दम तोड़ गया। इसी पर बात करते हैं फहद बशीर से। फहद, जानना चाहेंगे क्या सूरत हाल है अस्पताल में? ये रत्ता जाल का रहती है 60 साल हाजी मुश्ताक, जो कि गुर्दों के मर्ज में मुब्तला था। आज सुबह 9 बजे ये सिविल अस्पताल डायलिसिस के लिए आया तो डॉक्टर्स ने इसको एक प्रिस्क्रिप्शन बनाकर ऊपर डायलिसिस सेंटर भेजा, जहां पर जो अस्पताल अमला है उसने इसको 1 घंटे का टाइम दिया कि 1 घंटे बाद दोबारा आपके डायलिसिस होंगे। 1 घंटे बाद ये हाजी मुश्ताक जब दोबारा डायलिसिस सेंटर गया तो अमले ने 2 घंटे का टाइम देकर फिर इसको टरका दिया और यूं 1 घंटे टाइम देने के बाद इसी दौरान हाजी मुश्ताक जो है वो अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर ही दम तोड़ गया। अस्पताल में जो है 10 डायलिसिस मशीनें हैं और यहाँ पर रोजाना 20 से 30 मरीज जो है गुर्दों के मर्ज में। ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद बशीर, आपने अपडेट किया। तेज रफ्तारी और लापरवाही ने मजीद जिंदगियां निगलनी। शेखुपुरा के इलाके खानका डोगरा में कार और वैन में खौफनाक तसादुम के बाद वैन के सिलेंडर में आग भड़क उठी, जिसके बाद 4 अफराद जान की बाजी हार गए। कनकोट और गुजरात में भी ट्रैफिक हादसात ने 10 अफराद को मौत की वादी में पहुंचा दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात में कई कीमती जानें चली गईं। शेखुपुरा के इलाके खानकाह डोगरा में कार और वैन में खौफनाक तसादुम हुआ। हादसे के बाद वैन के सिलेंडर में आग भड़क उठी, जिसके बायस 4 अफराद जान की बाजी हार गए। 20 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी भी हुए। कंदकोट के करीब टोल प्लाजा के मकाम पर 2 मुसाफिर कोचों के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ, जिसकी जद में पीछे से आने वाला ट्रक और कार भी आ गए। 4 गाड़ियों के टकराने से 7 अफराद जाँ बहक जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हो गए, जिनमें 6 खवातीन भी शामिल हैं। हादसे में जख्मी होने वालों को सिविल अस्पताल जबकि शदीद जख्मी 6 मुसाफिरों को रहीम यार खान अस्पताल मुंतकिल किया गया। उधर गुजरात में भी ट्रैफिक हादसे में 2 खवातीन और कमसिन बच्ची जाँ बहक हो गयी, जबकि जख्मी होने वाले 8 अफराद को अजीज भट्टी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहरीली शराब बनाने वाले कानून की गिरफ्त से आजाद हैं। पुलिस के बुलंदोबाग दावे अपनी जगह, लेकिन गैर कानूनी शराब का धंधा उरूज पर है। गुजरांवाला में थाना सदर के इलाके में जहरीली शराब पीने से 2 करीबी रिश्तेदारों समेत 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अभी टोबर टेस्टिंग में जहरीली शराब पीने वालों के लवाहिकीन की सिस्कियां और आहो बका खत्म न हुई थी कि गुजरांवाला में एक और साहने ने जन्म ले लिया।
थाना सदर के इलाके में जहरीली शराब पीने से 4 अफराद शहबाज, वकील, कैफ और मुनीर हलाक हो गए, जबकि मोहम्मद रियाज और तनवीर की हालत तशवीशनाक है। मकामी अफराद के मुताबिक मरने वालों ने जहरीली शराब पी थी। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬੈ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਯਾਰ अचानक ये वाकया गुजर गया। मुझे पता चला कि इधर कोई 5-6 लोग हैं हमारे मोहल्ले की फैक्ट्री में काम करते हैं, उधर इन्होंने कोई जहरीली शराब या कोई इस तरह का केमिकल पिया जिससे ये घर आए हैं तो इन्हें उल्टियाँ आने लग पड़ी हैं, तो इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्होंने कहा कि इन्होंने कोई जहरीली चीज़ पी है, तो इसी वजह से 3 लोग एक ही दिन में उसी दिन फौत हो गए और चौथा बंदा जो कि कल फौत हुआ है। चंद रोज पहले टोबा टेक्सिंग में जहरीली शराब पीने से 42 अफराद मौत की वादी में उतर गए। गैर कानूनी शराब का धंधा करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के बयानात आए, पुलिस हरकत में आई, छापे भी मारे गए, लेकिन गैर कानूनी शराब बिकती रही। नतीजा इंसानी जानों के खात्मे की सूरत एक बार फिर सामने है। कोयटा के मगरबी बाईपास पर एफसी की फायरिंग रेंज पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका किया गया, जिसके नतीजे में एफसी के 6 एहलकार जख्मी और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। में साल 2017 के आगाज के साथ ही मगरबी बाईपास के पहाड़ धमाके से लरज उठे। दहशतगर्दों ने जमीन में नस्ब किए गए रिमोट कंट्रोल बम को उस वक्त धमाके से उड़ा दिया जब एफसी एहलकार फायरिंग रेंज पर पहुंचे। धमाके के नतीजे में एफसी के 6 एहलकार नायक लतीफ, नायब सूबेदार शफी, हवालदार अव्वल रहमान, सिपाही सैफुर रहमान, कासम और रजा शहजाद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर बीएमसी अस्पताल मुंतकिल किया गया। एफसी के ये फायरिंग रेंज है जो अपनी फायर प्रैक्टिस के लिए वो आए थे सुबह रूटीन में, और ये ऑलरेडी पहले से ये था और उनके ऊपर फिर ये आईडी लगी। धमाके से एफसी की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। इस मौके पर डीआईजी पुलिस अब्दुल रज़ाक चीमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि धमाके में 10 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। कमिश्नर कोयटा डिवीजन अमजद अली खान ने जय वकुआ का मुआयना करते हुए कहा कि दहशतगर्दों का हर सतह पर डटकर मुकाबला किया जा रहा है। दहशतगर्द है वो पीछे हट रहे हैं और ऐसी जगहों का इंतखाब कर रहे हैं जो नॉर्मली डोमेन में नहीं होती। धमाके की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें, एफसी और पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन सज्जाद हैदर के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोर के शोबाए सिंधी की फाइनल ईयर की तालिबा ने हॉस्टल में मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश फुरासा के हवाले कर दी है। तलबा की खुदकुशी की पुलिस ने तहकीकात भी शुरू की हैं। इसी हवाले से देखते हैं हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अल्ताफ कोटी की रिपोर्ट। सिंध यूनिवर्सिटी के शोबा सिंधी की फाइनल ईयर की तालिबा नायला रिंद बिनते निजाम रिंद के अंडर ग्रेजुएट गर्ल्स हॉस्टल के कमरा नंबर 36 से गले में फंदा लगी लाश मिली है। ऐसी इतला पर पुलिस और यूनिवर्सिटी इंतजामिया हॉस्टल पहुंच गई। पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर लाश कमरे से बरामद की और लाश को इब्तिदाई तौर पर LMU अस्पताल जामशोर मुंतकिल कर दिया, जहां डॉक्टर्स ने तालिबा के हलाक होने की तस्दीक कर दी। जामशोर पुलिस ने तालिबा नायला रिंद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल किया, जहां सिविल अस्पताल हैदराबाद की वुमेन मेडिको लीगल ऑफिसर समीना राजपूत ने पोस्टमार्टम किया। वुमेन मेडिको लीगल अफसर ने इब्तिदाई तौर पर बताया है कि बाज़ाहिर तालिबा की खुदकशी नजर आती है। तालिबा के जिस्म के अज्जा केमिकल मुआयने के लिए भेज दिए गए हैं। केमिकल मुआयने की रिपोर्ट के बाद ही तालिबा की मौत के हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। जामशोर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद नौजवान तालिबा नायला रिंद की लाश वुरसा के हवाले कर दी है, जो लाश कंबर सिटी ले गए हैं। दूसरी तरफ जामशोर पुलिस ने तालिबा की खुदकशी के हक़ाइक़ सामने लाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नवीद कायम खानी के साथ अल्ताफ कोटी, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद। मेरी दुनिया के और भी शहरों में जाएंगे और वहां के मसाइल आप तक पहुंचाएंगे। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर के सामने पार्किंग खत्म करने से मरीज और तीमारदार रुल गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े अस्पताल आने वाले मरीजों के लिए गाड़ी खड़ी करने का कोई इंतजाम नहीं। पार्किंग का ठेका खत्म करने से अस्पताल इंतजामिया को सालाना 30 लाख रुपए नुकसान भी हो रहा है। वजीर सेहत ने अस्पताल को कार पार्किंग की जिम्मेदारी से मुबर्रा करार दिया है। पेशावर से देखिए मसरदुल्ला जान की रिपोर्ट। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर का सबसे बड़ा अस्पताल, जहां रोजाना हजारों मरीज आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस अस्पताल में कार पार्किंग खत्म कर दी गई है, जिससे मरीज और इनकी तीमारदार दोहरे अजाब में मुब्तला हो गए हैं।
اس سے قبل خیبر روڈ اور ایمرجنسی میں واقع پارکنگ نجی کمپنی کے پاس تھی جو حکومت کو سالانہ 30 لاکھ روپے ادا کرتے تھے، لیکن ٹیکہ ختم کرنے سے ہسپتال انتظامیہ ان پیسوں سے بھی محروم ہو گئی ہے۔ گورنمنٹ کو ہم یہ سجیشن دیں گے کہ پارکنگ کے لیے ایک پراپر پلاننگ، پراپر طریقہ کار بنایا جائے جس کے مطابق پارکنگ کی جا سکے۔ مریض کے لیے آتے تھے یہاں جو ہے گاڑی کھڑا کر کے پارکنگ، تو اندر وارڈ میں جا کے اپنے مریض کا پوچھتے تھے۔ اب ان لوگوں کا پارکنگ کا سسٹم ختم ہو گیا۔ ہمارے کو پارکنگ نہیں ملتا ہے، ہم مریض اپنے کو سنبھال کرتا ہو کہ اپنی گاڑی کو سنبھال کرتا ہوں۔ اس کی وجہ سے روڈ بھی اکثر بلاک ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے عام لوگوں کو بھی تکلیف ہو رہا ہے، اور جو لوگ اپنے مریضوں کو ملنے کے لیے آتے ہیں اس کو بھی جو ہے نا اکثر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزیر صحت شاہرام ترکی کا کہنا ہے کہ مریضوں کو پارکنگ کی سہولت دینا ہسپتال انتظامیہ کی ذمہ داری نہیں۔ فوکس جو ہمارا ہوگا وہ پیشنٹ کیئر پہ ہوگا، نہ کہ پارکنگ سے ریونیو جنریشن ہوگا۔ ہمارا فوکس اس طرف ہے۔ ہاں، پیشنٹ کے ساتھ جو ان کو پارکنگ فیسلٹی چاہیے ہوتی ہے، جو اوبیسلی بورڈ اس چیزوں کو، ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ لیڈی ڈیلنگ ہسپتال کی 2 گیٹ بھی سیکیورٹی کے نام پر بند کر دیے گئے ہیں، جن سے مریضوں کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ پروگرام میں دنیا کے لیے کیمرہ مین محمد حیات کے ساتھ نصرت اللہ، دنیا نیوز پشاور۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ سیاسی سفارشی بھرتی اور بد انتظامی کا گڑھ بن چکی ہے۔ اربوں روپے خرچ ہونے کے باوجود ادارے کی حالت جوں کی توں ہے۔ تختیاں لگ گئیں لیکن کام کہیں نہیں ہو رہا۔ FIA نے غیر قانونی بھرتیوں اور کرپشن کی تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں۔ دیکھیں گے اختیار کھوکھر کی رپورٹ۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے 1973 میں لاڑکانہ کو چانکا میڈیکل کالج کا شاندار تحفہ دیا، جسے پیپل پارٹی حکومت نے 9 برس قبل شہید محترمہ بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کا درجہ دیا، لیکن حکام کی توجہ تعلیمی معیار کے بجائے سفارشی بھرتیوں اور کرپشن پر زیادہ رہی۔ جتنی امپلائمنٹس ہوئی یا پروجیکٹ پر جتنا خرچہ ہوا یا دوسرے مد میں جتنے بھی خرچے ہوئے ہیں، فائنینشیل ایریگولیٹریز ہوئی ہیں، تو اس پر ایک انکوائری FIA کی طرف سے چل رہی ہے۔ ایک سینئر لیکچرر ہے، وہ تو اسسٹنٹ پروفیسر نہیں بن سکتا، اس کو حکومت نے یہاں پر وائس چانسلر لگا دیا ہے۔ اس سے یونیورسٹی کی رینکنگ کیا بنے گی؟ یونیورسٹی کے اپ گریڈیشن کے منصوبے پر اربوں روپے خرچ ہو گئے، لیکن ادارے کا حال پہلے سے بھی بے حال ہو گیا۔ سر، یہ جنریٹر ہاسٹل کا تقریباً اس کو 3 سال ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں، کاغذوں میں کہتے ہیں کہ یہ چل رہے ہیں، لیکن ابھی تک ایک مرتبہ بھی نہیں چلا ہے۔ یہاں پر گرینری بالکل نہیں ہے، تو یہ ان کی چار دیواری جو ہے نا وہ بالکل خراب ہے، کتے پھرتے ہیں۔ میڈیکل ویڈیوز کے پروجیکٹر وال پر کسی اور کی پروجیکشن جاری ہے، جبکہ کھیل کے میدان اجڑ چکے ہیں۔ یونیورسٹی میں کرپشن کی یہ زندہ مثال ہے۔ سوئمنگ پول بنانے کے لیے منصوبے کی فاؤنڈیشن اسٹون لگائی گئی اور اس کے علاوہ کاغذوں میں کروڑوں روپے خرچ بھی ہو گئے، لیکن زمین پر منصوبے کا نام و نشان تک نہیں۔ 9 برس گزر گئے، لیکن یونیورسٹی کے نرسنگ اور ڈینٹل کالجز کو رجسٹریشن ہی نہیں مل سکی۔ پاکستان نرسنگ کاؤنسل جو ہے، ہماری نرسنگ کی کاؤنسل ہے جو ہمارے ادارے کو رجسٹر کرتی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جو فیکلٹی ہے وہ فیکلٹی بھی کمپلیٹ نہیں ہے، اور آپ کے پاس جو ادارے میں اسٹڈی کے حساب سے جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی بالکل کم ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے نام سے منسوب یہ ڈوبتا اعلیٰ تعلیمی ادارہ کرپشن اور بد انتظامی کی زندہ تصویر بنا ہوا ہے۔ پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرہ مین ناصر جان کے ساتھ اختیار کھوکھر، دنیا نیوز، لاڑکانہ۔ تھرپارکر میں تھرکول منصوبے تک پانی پہنچانے کے لیے 2014 میں شروع کیے جانے والا وجار ڈیم کا تعمیراتی کام 2 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ معاہدے کے مطابق ٹھیکیدار کمپنیز کو 2015 تک اس منصوبے کو مکمل کرنا تھا۔ تعمیراتی کام میں سست روی سے تھرپارکر کے لوگ بھی خاصے پریشان ہیں۔ دیکھیں گے عبدالجبار نہڑی کی رپورٹ۔ ناقص میٹیریل کا استعمال، اربوں روپے کے منصوبوں کی نامناسب دیکھ بھال۔ مئی 2014 میں تھرپارکر میں تھرکول منصوبے کے لیے شروع کیا جانے والا ویجیار ڈیم مقررہ وقت گزر جانے کے باوجود بھی مکمل نہ ہو سکا۔ اس ڈیم کے تعمیراتی کام کا ٹھیکہ 2 نجی کمپنیوں کے سپرد کیا گیا تھا۔ 2016 بھی گزر گیا مگر ڈیم کا کام سست روی کا شکار ہے۔ 14 مارچ کا تھا اور 15/2000 میں اس کو پورا ہونا تھا۔
2016 चल रहा है, लेकिन इसका जो मेन वर्क था वो हमने 2015 में ही खत्म कर दिया था। कंक्रीट जितनी थी हम पूरी कर गए थे। नबीसर से विजियार डैम तक मेन पाइपलाइन का काम भी मुकम्मल नहीं हो सका। थरपारकर के लोगों का कहना है इन मंसूबों की कोई देखभाल नहीं होती, जिसके बायस मसाइल पैदा होते हैं। हर कोई जो है कमीशन बचाने के चक्कर में, पैसा बचाने के चक्कर में, और ये जो है डैम बिल्कुल जो है नाकारा है। और हमारे लिए जो है यहाँ के जो मकामी लोग हैं, गाँव के लोग हैं, उनके लिए ये किसी भी वक्त जो है खतरा बन सकता है। सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो वो तो सिर्फ जो भी होते हैं गवर्नमेंट वाले वो अपने पैसे बचाने के चक्कर में होते हैं। एक तरफ हुकूमत तवानाई के बहरान से निमटने में मसरूफ है, तो दूसरी जानिब अरबों रुपए के प्रोजेक्ट मुकर्ररा वक्त से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद भी पूरा होने का नाम तक नहीं लेते। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए अब्दुल जब्बार नोहड़ी, दुनिया न्यूज, थरपारकर। अयूब फुटबॉल स्टेडियम कोयटा की हालत जार सूबे में खेल की तबाही का मंजर पेश कर रही है। वो कैसे, बताएंगे फरीदुल्लाह खान। बलूचिस्तान की सरजमीन को अल्लाह ताला ने ऐसे सपूतों से नवाजा है जो जिस मैदान में कदम रखे तो कामयाबी उन्हें खुशामदीद कहती है। अयूब स्टेडियम में वाक़ सूबे का सबसे बड़ा फुटबॉल ग्राउंड कई सालों से तबाही से दो चार है। ग्राउंड में घास की बजाय फुटबॉल के शौकीन सैकड़ों खिलाड़ी मिट्टी में खेल कर अपना शौक पूरा कर रहे हैं। मैदान का हाल ये है कि जब खिलाड़ी खेलना शुरू करते हैं तो उनके पाँव मिट्टी में धंसे और चेहरे धूल से अटे दिखाई देते हैं। यहाँ पर इतनी ज्यादा मिट्टी है, जब मैं घर जाता हूँ मुझे वालदा पहचानती भी नहीं है कि मेरा बेटा ही है कि कोई और है। इतना ज्यादा मिट्टी हम लोग यहाँ पर खेल नहीं सकते। हर जगह गिरासी होता है, दूसरे मुल्कों के जो बच्चों को हम देखते हैं ट्रेनिंग करते हुए, हमें तो बस हमारे ख्वाब में गिरास नजर आता है। नेशनल लेवल के फुटबॉलर्स का कहना है कि हुकूमत हर साल करोड़ों रुपए खर्च करके फेस्टिवल का इनेकाद कराती है, लेकिन फुटबॉल ग्राउंड की हालत उनके दावों का मुंह बोलता सबूत है। यहाँ पे तो बंदा टीबी कैंसर का मरीज हो सकता है, यहाँ तो खेलने का काबिल ही नहीं है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हुक्काम का कहना है कि सूबे में खेलों के फरोग के लिए माजी के मुकाबले में ठोस बुनियादों में काम किया जा रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत को स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन से कितनी मोहब्बत है, इसका अंदाजा इस ग्राउंड को देख के बखूबी लगाया जा सकता है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन सजाद हैदर के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज, कोयटा। कहीं मत जाएगा, एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में शामिल है गुले दाऊदी की बहार। वेलकम बैक। शुजाबाद का नाम नवाब शुजा खान के नाम पर रखा गया, मगर उनके बेटे नवाब मुजफ्फर खान के नाम से मंसूब महल अपनी हालत पर नुहाकना है। महल के दरवाजे, खिड़कियां और छतें तक गायब हो चुकी हैं। रिपोर्ट करेंगे मलिक जावेद। नवाब शुजा खान जिनके नाम पर शहर आबाद हो गया, मगर उनके बेटे नवाब मुजफ्फर खान के नाम से मंसूब महल इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत, हुक्मरानों की लापरवाही और अवाम की बेहिसी की नजर होकर वीरान हो गया। अपने मुनफरिद तर्ज तामीर की वजह से ये जहाजी महल के नाम से मशहूर हुआ, मगर 280 साल पुराना ये तारीखी विरसा अब चोरों की आमाजगाह है। बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो चुकी है, तो इसमें कोई मजायका नहीं, क्योंकि ना यहाँ कड़ियाँ छोड़ी जा रही हैं, न गार्डर, न शतीर, न ईंटें। वालिये मुल्तान और जुनूबी पंजाब का तारीखी विरसा अपनी हालत पर नौहा कुना है, मगर आसार कदीमा के माहिरीन की इस जानिब कोई नजर नहीं है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मलिक जावेद वैंस, दुनिया न्यूज, शुजाबाद। मुगलिया फन तामीर के शाहकार शहर शहर देखने को मिलते हैं। इनमें से एक दरियाए सतलुज के किनारे शहनशाह अकबर की बारादरी भी है। इलाहाबाद से सरवर जाहिद रिपोर्ट करेंगे। मुगलिया फन तामीर ने बरसगीर पाको हिंद पर गहरे नुकूश छोड़े। यही नक्श इलाहाबाद से चंद किलोमीटर दूर बारादरी में भी मौजूद हैं, मगर अब ये बारादरी अपनी हालत पर नोहा किना है। अकबरी डेरा कहलाने वाली इस तारीखी इमारत को अब शिकारी मुहिम जुओं की शिकारगाह भी कहा जाता है। खजाना तलाश करने के चक्कर में इमारत की बुनियादों में सुरंगें खोद दी गयीं, जबकि महकमा आसार कदीमा की अदम दिलचस्पी के बायस सेम और थोर इसे धीमक की तरह चाट रही है।
खजाने के लालचियों ने इसकी बुनियादों में जो है वो सुरंगें बना दी हैं और आज ये 12 दरी जो है ये भूत बंगले की शक्ल इख्तियार कर गई है। नक्शो निगार मिट जाने से इमारत भूतों का बसेरा मालूम होती है। अगर इस तारीखी शाहकार पर तवज्जो दी जाए तो ये बेहतरीन सियाहती मरकज बन सकती है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए सरवर जाहिद, दुनिया न्यूज, इलाहाबाद। आजाद कश्मीर के सबसे गुंजानाबाद शहर कोटली में जहां शहरियों को तफरीह के मौके न होने के बराबर हैं, वहीं शहर के दोनों पार इंतजामी इदारों की गफलत का शिकार हो चुके हैं। देखेंगे ख्वाजा काशिफ की रिपोर्ट। कोटली शहर की आबादी 2 लाख से तजावज कर चुकी है। हुकूमत ने शहरियों को तफरीही सहूलत मुहैया करने के लिए 2007 में हाउसिंग स्कीम पार्क और थलेर पार्क तामीर किए थे। जो इंतजामी अदारों की लापरवाही की वजह से अब खस्ता हाली का शिकार हैं। यहाँ ये था कि बच्चे आते थे, खेलते थे, बहुत नाइस माहौल होता था, झूले भी यहाँ सब ठीक थे। पहले हम इधर आते थे, पढ़ते थे, इजी टाइम जो होता था पहले इधर आते थे। काफ़ी अच्छी पार्क थी पहले। 2 साल से इस पार्क की हालत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई है। स्कूलों के बच्चे और शहरी फरागत के दौरान इन पार्कों का रुख तो करते हैं, लेकिन यहाँ साफ सुथरे माहौल के बजाय टूटे फूटे झूले, पानी के बगैर फवारे, खुदरू घास और गंदगी के ढेर इनकी तबीयत को मजीद बोझल करते हैं। यहाँ पे बच्चे आके खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी गंदगी है, बच्चे जो है ना बीमार पड़ जाते हैं। मुझे आते हुए 3 साल हो गए, जब भी आऊँ यहाँ गंदगी नजर आती है। म्यूनिसिपल कारपोरेशन हुकाम इन तफरीही पार्कों की हालत बेहतर करने की जहाँ ज़बानी तिफल तसल्लियाँ दे रहे हैं, वहीं शहर की सफाई सुथराई और तफरीह के दीगर मौके पैदा करने के लिए अमली इकदामात नहीं किए जा रहे। अवाम के लिए बनाए गए इस पब्लिक पार्क की तरह शहर में दर्जनों दीगर ऐसे मकामात हैं जिनकी तरफ अगर हुकूमत तवज्जो दे तो शहरियों को तफरीह के मौके मिल सकते हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन MD मुगल के साथ ख्वाजा काशिफ, दुनिया न्यूज़, कोटली, आज़ाद कश्मीर। सादिकाबाद के नवाह में वाक़ रूरल हेल्थ डिस्पेंसरी रहीमाबाद भूत बंगले में बदल चुकी है। डिस्पेंसरी में अमला है और न ही अद्वियात, और तो और इमारत भी किसी वक्त जमीन बोस हो सकती है। देखेंगे फरहान इकबाल की रिपोर्ट। कहने को तो ये रूरल हेल्थ डिस्पेंसरी है जहां लोग बीमार हों तो शिफा के लिए आते हैं, लेकिन हालत ये है कि सादिकाबाद के नवाही इलाके रहीमाबाद की इस डिस्पेंसरी में ताले लगे हैं, छत गिरने वाली है और इमारत भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। कोई सहूलत की चीज नहीं है, ना स्टाफ मौजूद है, ना डॉक्टर मौजूद है। इमारत जो है खंडरात के मंजर पेश कर रही है, जगह जगह पर कचरा पड़ा हुआ है। हमारे अस्पताल की हालत बहुत ख़राब है। वज़ीर आला से यही दरख्वास्त है कि बड़ा मेहरबानी करके उसको नई तामीर की जाए। डिस्पेंसरी पर तैनात अमले के लिए ड्यूटी करना मुश्किल हो गया है और अवाम इलाज मुआलजे की सहूलत से महरूम है। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रूरल हेल्थ डिस्पेंसरी भी तस्लीम करते हैं कि इमारत खतरनाक है, लेकिन इस डिस्पेंसरी की हालत बेहतर कैसे होगी, सब खामोश हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए फरहान इकबाल, दुनिया न्यूज़, सादिकाबाद। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो गुजरावाला में 14 कमसिन बच्चों को वालिदैन से बिछड़े कई साल बीत गए हैं। देखेंगे मलिक तारिक की रिपोर्ट। नए साल के आगाज पर डेरा इस्माइल खान की सड़कों पर पख्तून, ज़ल्मी और मुस्कान पर पाबंदी को मकामी आबादी ने खुशामदीद कहा है। ट्रैफिक पुलिस ने बगैर नंबर प्लेट और बंदोबस्ती अजला की रजिस्ट्रेशन वाले चिंची रिक्शाओं पर कैंट और अंदरूने शहर में चलने पर पाबंदी आयद कर दी है। डेरा ट्रैफिक पुलिस ये पाबंदी लाई है, ये बहुत चंगा किया, अल्लाह इन्हें को खुश रखे। पुलिस के इस इकदाम से चिंची के बायस होने वाले माहाना 150 के लगभग हादसात में कमी मुतवक्के है और ट्रैफिक की रवानी में भी बेहतरी आएगी। नंबर प्लेट की कैद से खाली पख्तून ज़ल्मी को पुलिस ने शिकंजे में लेकर तमाशा बनाया तो खूबसूरत मुस्कान भी सिमट कर पुलिस लाइन की जीनत बन गई। नए साल के पहले ही रोज सैकड़ों रिक्शे बंद कर दिए गए। एक दिन के ऑपरेशन में हमने 500 के करीब हमने ये पकड़ी हैं और हमारे डीए खान में तकरीबन इनकी तादाद जो है 15 से 20 हजार के दरमियान होगी। जो बाहर की रजिस्ट्रेशन चल रही है, डीए खान की इतनी नहीं है। पुलिस आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त शहर में चिंची रिक्शाओं की तादाद 20,000 से तजावुज कर चुकी है और माह दिसंबर के दौरान जुर्मानों की मद में 30,81,000 रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए गए। शहर में गैर कानूनी चिंची रिक्शाओं की बंदिश से उम्मीद की जा रही है कि न सिर्फ ट्रैफिक हादसात में कमी आएगी बल्कि मकामी अफराद को बेहतर माशी फवायद भी हासिल होंगे।
प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नईम अब्बास जाफरी के साथ नुसरत हुसैन, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। मुल्तान में सर्दी के मौसम में खुश रंग और दिलफरेब खुशबू से लबरेज गुले दाऊदी की बहार आ गई है। कंटोनमेंट गार्डन में सजाई गई सालाना नुमाइश में सर्द मौसम का मजा और फूलों की खूबसूरती देखने के लिए शहरों की बड़ी तादाद यहां का रुख कर रही है। देखेंगे जाम बाबर की रिपोर्ट। यूं तो कोसों कज़ा के रंग बरखा बरसने के बाद सिर्फ आसमान पर नजर आते हैं, लेकिन बात अगर जलवा कुदरत के मज़ाहिर की हो तो खालिक के इलाही रंगों को फूलों का रूप देकर जमीन पर ही इनका जलवा दिखा सकता है। और अगर इन रनाइयों को दिलफरेब अंदाज में सजाकर पेश किया जाए तो तारीफ के लिए लफ्ज बेजान से हो जाते हैं। फिजा के मौसम में बहार आई हुई है, इन फूलों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे खिजाम के अंदर बहार का मौसम देख के तबीयत बहुत खुश हो गई है और यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा है और हम इंजॉय कर रहे हैं। हम हमेशा आते रहते हैं और हर दफा पहले से भी ज्यादा जो है खूबसूरत फूल नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मुल्तान के कंपनी बाग में, जहाँ 150 अक़साम के गुले दाऊदी ने अपने रंगों से माहौल को सजा दिया और उनकी भीनी भीनी खुशबू ने मशहूर कुन एहसास पैदा कर दिया। फूल कलियां ही कलियां, बहुत ही अच्छा लग रहा है। फैमिली के साथ हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। नीले पीले कासनी और जामनी रंगों से आरास्ता सरमा के मौसम में फूलों की बहार और उनकी खुशबू ने शहरियों को अपने शहर में जकड़ लिया। जाड़े के मौसम में रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों की ये महक जहाँ फिजा को मुअत्तर कर रही है, तो वहीं शहरियों के चेहरों पर रौनकें भी बखेर रही है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ जाम बाबर, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। मेरी दुनिया के दीगर शहरों का अहवाल एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। वेलकम बैक। मुल्तान में जराइम की रोकथाम और अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स बना दी गई है, जिसमें मर्द पुलिस एहलकारों के साथ खवातीन एहलकार भी शरपसंद अनासर के खिलाफ घेरा दंग करने में मदद करेंगी। तफसील के लिए देखिए जाम बाबर की रिपोर्ट। शहर भर में बढ़ते हुए जराइम को रोकने और अमनो अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मर्द पुलिस एहलकारों के साथ अब खवातीन पुलिस एहलकारों ने भी हथियार उठा लिए हैं, जो किसी भी वारदात की इतला मिलते ही 5 से 7 मिनट में क्विक रिस्पांस करते हुए जय वकुआ पर पहुंचेंगी। क्विक फोर्स जो है ना वो तैयार की गई है, जिससे जो है ना जराइम जहाँ भी जिस जगह भी होगा उसका फौरी तौर पे रिस्पांस होगा। जैसे हमारे मर्द हजरात काम करते हैं, हम उनके शाना बशाना मिलकर काम करेंगे और इस फोर्स को एक कामयाब फोर्स बनाएंगे। फोर्स में शामिल एहलकारों को मोटरसाइकिल फराहम करने के साथ साथ मोबाइल फोन और स्पाई कैम भी फराहम किए गए हैं, जो किसी वाकये की फुटेज भी बना सकेंगे। मुहाफिज स्क्वाड की वजह से जराइम की और खुसूसन व्हीकल थेफ्ट की और मोटरसाइकिल थेफ्ट की जो क्राइम के ऊपर कमी आएगी। शहर के मुख्तलिफ जगहों पर 180 क्विक रिस्पांस फोर्स के एहलकारों के साथ मुहाफिज स्क्वाड भी चोरी, डकैती और मोबाइल फोन स्नैचिंग को रोकने के लिए अपनी ड्यूटी के फराइज सरअंजाम देंगे। सर्दी में इजाफे के साथ ही खुश्क लकड़ी के बालन की कीमत में 200 रुपए फी मन इजाफे ने गरीब आवाम के चूल्हे मजीद ठंडे कर दिए हैं। गुजरांवाला से फहद बशीर की रिपोर्ट। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस के कम प्रेशर ने शहरियों को खुश्क लकड़ी को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया है। शहरियों की इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए लकड़ी फरोख्त करने वालों ने इसकी कीमत में कई गुना इजाफा कर दिया है। गैस का प्रेशर ही नहीं है, जैसे मौसम चेंज होता है गैस ही वैसे लो हो जाती है। जब लकड़ी लेने आते हैं तो लकड़ी का रेट ही हाई हो जाता है। सर्दी की वजह से गैस नहीं आ रही है, इसीलिए हम इधर लकड़ी लेने आए हैं और ये रेट जो बहुत अप जा रहा है। गैस के कम प्रेशर के बायस ताल के मालकान ने खुश्क लकड़ी के बालन की कीमत में 200 रुपए फी मन इजाफा कर दिया है। 400 रुपए फी मन मिलने वाली लकड़ी अब 600 रुपए फी मन फरोख्त हो रही है। कीमतों में हम नहीं इजाफा करते, जब गैस की किल्लत हो जाती है तो लकड़ी कम आना शुरू हो जाती है तो गाहक ज्यादा हो जाते हैं, उस वजह से फिर काम महंगी हो जाती है।
लकड़ी फरोख्त करने वालों का कहना था कि सर्दियों में गैस के कम प्रेशर के बायस लकड़ी की बढ़ती हुई मांग इसकी कीमतों में इजाफे का सबब है। एक तरफ तो गैस का कम प्रेशर और दूसरी खुश लकड़ी की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। जरूरत इस अमर की है कि खुश लकड़ी की बढ़ती हुई कीमतों में इजाफे को कंट्रोल करके शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नवीद शहजाद के साथ फहद बशीर, दुनिया न्यूज, गुजरांवाला। इंटरनेट से मुतारिफ होने वाले पार्कों का खेल आज कोयटा के गली मोहल्लों और मैदानों में पहुंच गया है और मुख्तलिफ ट्रिक्स करना अब इस मुनफरिद खेल से वाबस्ता खिलाड़ियों का बेहतरीन मशगला भी है और शौक भी। ये खिलाड़ी इस दिलचस्प खेल को मुल्क भर में मुतारिफ भी कराना चाहते हैं। मजीद बताएंगे अबरार अहमद। सोलह खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम के इन नौजवानों को पार्कोर का शौक इंटरनेट पर पार्कोर की वीडियोस देखकर हुआ, लेकिन इन पुरअज़म नौजवानों ने साबित कर दिखाया कि शौक की तकमील के लिए मेहनत और लगन से काम किया जाए तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इन बासलाहियत खिलाड़ियों का कहना है कि कोयटा जैसे छोटे से शहर में अपनी मदद आपके तहत इन्होंने इस खेल में महारत हासिल की। अगर इन्हें सरपरस्ती हासिल हो तो वो न सिर्फ पाकिस्तान की सतह पर इस खेल को मुतारिफ कराना चाहते हैं, बल्कि रूस में होने वाली पार्कोर की चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए वहाँ सब्ज हिलाली परचम लहराने के ख्वाहिशमंद भी हैं। हर साल रशिया में इसका जो पार्कोर का चैंपियनशिप होता है, इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा उधर लहरा के पूरी मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सके। पार्कोर प्लेयर्स इस खेल के फरोग के लिए मुस्तकबिल में पार्कोर का क्लब बनाने का अज़म रखते हैं ताकि इस खेल की जानिब आने वाले नए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देकर अमली मैदान में उतारा जा सके। पार्कोर के मुख्तलिफ ट्रिक्स करते ये नौजवान इस बात का सबूत है कि कोयटा में टैलेंट की कोई कमी नहीं, इन्हें ज़रूरत है तो सिर्फ गवर्नमेंट की सपोर्ट की। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ इब्रार अहमद, दुनिया न्यूज़, कोयटा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी कीमती राय हमें जरूर भेजिएगा। हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो। आप ट्विटर पे भी हमें फीडबैक दे सकते हैं। ट्विटर आईडी है मेरी दुनिया शो। आज के शो से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।